Is my audio fine? Yeah, it's fine. Okay. Uh, 9 o'clock, right? Yeah. Praise the Lord. Thank you for this opportunity. इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इस समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस मिनिस्ट्री का, इस ऑल्टर का, ब्रदर जितेंद्र और नीलिमा का भी धन्यवाद करता। और ये जो अवसर मुझे मिला है उसमें जो कुछ हम आपस में एक दूसरे से परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे, एक दूसरे को उत्साहित करेंगे और परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए जो कुछ हमें चाहिए उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वचन में से बताऊंगा। Father, in the name of Jesus, I thank you. Thank you for this time. Thank you for this place. Thank you for the people that are hearing. My Father, I thank you that there are no incidents or accidents in your kingdom, Lord. Everyone who is supposed to hear this, Lord, is over here, and I thank you for it. Now, Holy Spirit, into your hands I commit everything. Whatever is spoken through my mouth, Lord, comes without any external influence or effluence, my Father God, but under the anointing. And I thank you that you confirm the word preached through signs, wonders, and miracles. In Jesus' name, amen. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब नीलिमा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं परमेश्वर के वचन से शेयर कर सकता हूँ, तो मैंने कहा हाँ। उसके बाद मैं सोचने लगा कि जैसे मैंने बीते एक दो सप्ताह पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने परमेश्वर के राज्य के विषय में one of the aspects that I said was around signs and wonders or miracles. मैंने ये बताया कि we have to have the mindset, we have to believe in miracles first thing, and then we have to expect miracles, expect the supernatural wherever we go. Bhajan Samhita Psalm 72 verse 18 says that the God we believe in, he only does miraculous things. If God agar Parmeshwar, if God is ever involved in any situations, my friends, we have to expect the supernatural. So that's what I said. And then I was thinking that maybe I'll tell them about authority, ownership, or other aspects of the kingdom, like the blessing that what Brother Jiten was saying. But I had a strong impression in my spirit that no, my people need teaching. My people need teaching around this aspect, and let's take it. I want to take it up a notch higher. मैं इसे एक पायदान ऊपर ले जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, सो आई सेड फाइन, वी कैन डू इट। सो व्हाट आई एम गोना से इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट, बहुत सारी बातें जो आज मैं आपसे बोलूंगा, यू हैव टू टेक इट अप। अगर आपने इसे पहले नहीं सुना है, अगर आपने इसे पहले नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने आपको रिवील किया है, यू हैव टू टेक इट अप बाय रेवलेशन। आपको, यू हैव टू रिसीव इट बाय रेवलेशन, डोंट रिजेक्ट इट। रिसीव इट बाय रेवलेशन एंड लेट द होली स्पिरिट वर्क। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। ही विल मेक श्योर दैट ही रिवील्स इट अनटू यू। आई अंडरस्टैंड माय पोजीशन, जैसा याकूब की किताब उसके 3:1 में लिखा है, whenever we get an opportunity to speak, it says that people who preach are under greater scrutiny. So we understand, मुझे पता है जब मैं खड़ा हूँ कि what I have to do and how I have to let God and his kingdom be glorified rather than telling the human philosophy. So I'll take that thought. I'm not sure, मुझे नहीं पता कितने लोग 2-3 हफ्ते पहले जब मैंने बताया था उस चीजों में आपने सुना है। बट उसी को कैरी करते हुए व्हाट आई वाज टेलिंग इज यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू। हमारे कुलोसियो 2:8 में लिखा है जैसे कि हमारे शिक्षा, हमारी बातें, ज्ञान की चीजें, इन सारी चीजों के कारण से व्हाट हैपेंड इज we have stopped believing and expecting in the miracles. We are not expecting God to show up in a lot of things. It says don't let anyone fool you by using senseless arguments. These arguments may sound wise, but they are only human teaching. They come from the powers of this world and not from Christ. So what it is saying is anything that is outside of the word, outside of the anointing of the Holy Spirit, no matter how good, चाहे जितना भी वो अच्छा और जितना भी, it may be wise, it may be the right teaching, but it has its limitation. It is coming from the powers of this world.
and it is not coming from God, or it is not coming from the eternal, so it has its limitations. What I want you to do is, I want us to, I'm trying to pace this up. मैं चाहता हूँ कि इसे मैं बताऊं. अगर आपको शुरू में ऐसा लगता है this is disjointed or anything, have patience. By the time I finish it in 30 minutes, I'll try to join this up. Let's look at it up. Let's take it up a notch higher, right? So what we are saying is we have to believe for miracles. हमें विश्वास करना है चिन्ह और चमत्कार के लिए. We have to expect miracles. We have to expect the miracles. Now we'll see. And before I start, I want to make a statement, and that is anything that God is ever going to do in our lives. Listen carefully, maybe one more time I'll repeat. Anything that God is ever going to do in our life, He has already done it. I don't have, maybe this is not the right time or place to explain or expound on it, but take that word, we'll build on that, and if the grace of God allows, we will come to that some other day and tell you. कहने की बात यह है, परमेश्वर को जो कुछ हमारे लिए करना था वो पहले ही कर चुका है. I'll give you an example. यीशु मसीह 2000 साल पहले उस क्रूस पर मारे गए. 2000 प्लस साल पहले उस क्रूस पर मारे गए. बट इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 7वां या 8वां पद है, इट सेज कि द लैम्ब वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही मेमने का वध हुआ था. सो इन द आईज ऑफ गॉड व्हाट हैपेंस इज एनीथिंग दैट ही हैज टू डू, anything that God wants to do or God had to do for this world, even before the foundations, even before Adam fell, even before sin entered this world, even before any of the things happened, anything that he ever needed to do, जो कुछ परमेश्वर को करना था, he has already done it. He has finished his work and he has sit down. He has, for in his eyes, everything is complete. So अगर आपको और मुझे किसी चीज की जरूरत है, अगर आपको और मुझे किसी चीज को कर परमेश्वर से पाने की जरूरत है, इफ अगर मुझे और आपको ऐसा लगता है कि हमें बोलना चाहिए कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये कार्य कर, यू एंड आई, आप और मैं, वी आर स्टार्टिंग ऑन द रॉन्ग फुटिंग. हम एक फंडामेंटली गलत जगह से एक शुरुआत को कर रहे हैं. बिकॉज वॉट एवर ही हैज टू डू, just bear it in mind. We'll some other day, some other one will explain you what it means. जो कुछ परमेश्वर को हमारे लिए करना था, he has already done it. In his eyes it is all finished. उसने हमारे लिए वो सारी चीजों को कर दिया है. लेट्स गो थ्रू सम प्लेसेस. लेट्स कुछ चीजों को देखेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे, एंड देन विल कम. पिछले हफ्ते, पिछली बार जब मैंने बताया था, मैंने एक गवाही को शेयर किया था पास्टर ए एलन और RW शैम्बॉफ का. उस गवाही को भी फिर से एक बार देखेंगे कि हाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू लाइंस अप विद दैट. आई विल गिव यू अ स्टोरी. एक कहानी, एक घटना है जो मैं बताता हूँ. लूका 5 में एक घटना है. क्या होता है, यीशु मसीह गन्नेसरेत के एक तालाब के किनारे आते हैं. उस दिन उस तालाब पर 2 नाव रहती है. यीशु मसीह उसमें से एक नाव को चुनते हैं, उसमें बैठते हैं. उस पतरस से बोलते हैं कि तू एक काम कर, इस नाव को थोड़ा सा तट से दूर लेके जा, क्योंकि मुझे अपने लोगों को कुछ बताना है. फिर वो वहां पे बैठ के प्रचार करते हैं, वो उनको समझाते हैं. उसके बाद वो पतरस से बोलते हैं, पतरस एक काम कर, तू इस नाव को और गहराई तक ले जा और उसके बाद जाल को फेंक और बहुत सारी मछलियों को तू पकड़ेगा. वर्ड टू वर्ड आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग, मैं आपको शब्द ब शब्द में नहीं बता रहा, एक सार बता रहा हूँ. बिकॉज आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू पुट समथिंग दैट द होली स्पिरिट हैज पुट एज अ सीड इनटू योर लाइफ. पतरस, उससे पहले क्या होता है कि रात भर पतरस और उसके व्यावसायिक दोस्त वो सारे मिलकर उस झील में रात भर वो जाल डालते हैं, उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती. मेरे प्रियो, मेरा मानना है कि उन्होंने उस तालाब में से जितनी भी मछलियां थी, उनको सारों को पहले ही वो पकड़ चुके थे. उस तालाब में और मछलियां बची नहीं थी. परंतु उसने कहा कि रात भर मैंने मेहनत की है, लेकिन कुछ पकड़ा नहीं, पर तेरे बोलने पे, एट दाई वर्ड, मैं एक जाल तो डालूंगा. आई विल थ्रो द नेट. फिर उसके बाद क्या होता है हम सबको पता है. ही कैचेस अ लॉट ऑफ फिशेस. वो इतनी सारी मछलियों को पकड़ता है.
कि उसका जाल टूटने लगता है। फिर वो अपने मित्रों को, जो उसके साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको बुलाता है। वो सारे मिलके वो मछलियों को पकड़ते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग, ये सारा दृष्टांत जब खत्म होता है, वो सारी चीजों को छोड़ देते हैं। दे लीव एवरीथिंग एंड देन दे स्टार्ट फॉलोइंग जीसस। जब उन्हें समझ में अ, जब वो उतने सारी मछलियों को देखते हैं और वो देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया है, वो उन सारी चीजों को छोड़ देते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, जकरिया 8:23, जकरिया 8 उसके 23 में यही लिखा है कि जब एक ऐसा समय आएगा जब बोलने से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, वो हमारे हाथों को, हमारे स्कर्ट्स को पकड़ के हमारे पीछे आएंगे। कोई कहेंगे कि हमने देखा है कि परमेश्वर तेरे साथ है। क्वेश्चन में एक सवाल, आज एक सवाल का हम जवाब खोजेंगे। वेयर डिड द फिश कम फ्रॉम? वो मछलियां आखिर आई कहाँ से? द नाइट बिफोर, एक रात पहले तो पतरस ने उस सारे तालाब में उन्होंने जाल को फेंका था, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। जब यीशु मसीह ने बोला तो उन्हें उतने सारे मछली आई कहाँ से? एक और दृष्टांत, गिनती की किताब। मैं एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं कुछ 3 या 4 आपको उदाहरण दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक, आई वांट टू गेट यू टू अ पॉइंट। लाइक आई सेड, ये एक स्तर, एक पायदान ऊंचे हैं। जैसे मैंने पिछली बार तो प्रचार किया था, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट द होली स्पिरिट वांट्स। आई एम टेकिंग यू अ स्टेप हायर एंड आई एम टेलिंग यू। नंबर्स चैप्टर 17, गिनती 17, उसका बैकग्राउंड क्या है? मूसा और हारून के लीडरशिप पर, उसके नेतृत्व पर इजरायली सवाल करते हैं कि क्या परमेश्वर सच में इन्हीं से बात करता? क्या हमसे नहीं बात करता? क्या हम इसका नेतृत्व नहीं कर सकते क्या? तो इन सारी चीजों के होने के बाद परमेश्वर कहता है, एक काम कर मूसा, इनसे बोल कि ये सारे लोग अपने अपने गोत्र के हिसाब से एक एक छड़ी को लाएं और उसे तंबू में वाचा के संदूक के अंदर में रखें। और जिसके संदूक, और उस संदूक में रखें, और अगले दिन जिसकी छड़ी पर से फूल, कलियां खिलेंगी, उसी के नेतृत्व को मैंने चुना है। वो वैसा ही करते हैं। अगले दिन सुबह होती है, वो संदूक को खोलते हैं, तो हारून की जो छड़ी रहती है उसमें कलियां खिलती हैं। कलियां ही नहीं, वो कल उसमें से कुछ कलियां फूल भी बन जाती हैं। फूल ही नहीं, उनमें से कुछ फूल बादाम, एलमंड्स बन जाते हैं। एलमंड बनना ही नहीं, उनमें से कुछ एलमंड पक भी जाते हैं। सवाल फिर वही है, वेयर डिड दैट ब्रांच स्टार्टेड ब्लॉसमिंग? वो कैसे, वो छड़ी है जो निर्जीव है, जो एक स्टिक है, जो पेड़ से लगी भी नहीं हुई है, उसमें कलियां, उसमें फूल और उसमें बादाम कैसे आने लगे? एक और दृष्टांत है, दूसरा राजा, उसका शायद 4 अध्याय। उसका, एक विधवा है, एलिया के पास जाती है, बोलती है ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति ने ये सब किया है, लेकिन आज साहूकार लोग मेरे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं क्योंकि मैंने उनका उधार चुकाया नहीं है। वो पूछता है, स्त्री तेरे पास क्या है? वो कहती है, मेरे पास एक बर्तन में तेल है, अ जार, अ बॉटल ऑफ ऑयल। मेरा मानना है दैट इज अ कॉस्टली फ्रेगनेंस बरियल ऑयल, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वो केंद्र बिंदु नहीं है। वो कहती है मेरे पास ये है। वो बोलता है, काम कर, अड़ोस पड़ोस में जा, सारे बर्तनों को उठा के, जिससे जो मिल सकता है सारे बर्तनों को लाना, अपने बच्चों के साथ उस कमरे में जाना, उसे बंद करना, और उसके बाद उन बर्तनों में उंडेलना। अगेन, एंड आपको पता है क्या होता है? वो जब उस बर्तनों में उंडेलने लगती है मेरे प्रियो, जब तक कि उसके पास बर्तन रहते हैं, उसके शीशी में से या फिर उसके बर्तन में से वो तेल निकलते रहता है। अगेन द सेम फंडामेंटल क्वेश्चन, वही मूल सवाल आता है, वेयर इज द ऑयल कमिंग फ्रॉम? वो तेल कहाँ से आ रहा है? वो तेल तो, एक शीशी भर का तेल, आपको पता है अगर हम बर्तन में डालेंगे तो शायद 1 2 3 बर्तन, उसके बाद तो उसे खत्म हो जाना चाहिए। पर वो तेल खत्म नहीं हो रहा जब तक बर्तन खत्म नहीं हो रहे। वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? नेक्स्ट पॉइंट, आई विल क्लोज इट विथ न्यू टेस्टमेंट। मत्ती 14, 5,000 7,000 की भीड़ है, मुझे याद नहीं ठीक से। वो सब यीशु मसीह की बातों को सुनने आए हैं। अब शाम का समय है, उन्हें घर जाना है। यीशु मसीह कहते हैं कि काम करो, तुम इन्हें खाना दो। वो कहते हैं हमारे पास है नहीं, पर इस छोटे बालक के पास शायद
दो दो मछली पांच रोटी या पांच मछली दो रोटी, ऐसा कुछ रहता है। यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, वो उसके ब्लेस करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और उसे तोड़ते हैं और लोगों को देते हैं। व्हाट हैपेंस, इट मल्टीप्लाइज। जितने लोग वहां पे हैं उन सबको जो कुछ उन्हें चाहिए, जितना उन्हें चाहिए, वो खाना मिलता है। एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। और शायद वो कुछ टोकरियों में भर कर भी खाने को लेके जाते हैं मेरे प्रियो। Again, the question is, where is that food? Where is it coming from? Where is it coming from? Last place, John chapter 2, यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय। काना में यीशु मसीह एक शादी में जाते हैं। वहां पे दाखरस खत्म हो जाता है। सारी कहानी नहीं बताऊंगा, हम सब ने कई बार अलग अलग प्रचारों में सुना है। वो उससे बोलते हैं कि तू एक काम कर, ये जो बड़े बड़े इसमें पानी है ना, जो हाथ और पैर धोने के लिए है, उस पानी को ले, इन मटकों में भरो और जाओ, जो चीफ गेस्ट है इस फंक्शन का, उसे पिलाओ। जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं वो पानी दाखरस में बदल जाता है। वो जो पीता है वो बोलता है कि ये तो दाखरस हो गया है। Again, the question is, where is that wine coming from? Where is that wine coming from? The point I'm trying to make, जो बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ, God is not doing वो तेल, God is not trying to do something when there is a need. There is an inexhaustible supply. एक ना खत्म होने वाला स्तोत्र है जिसमें हर वो चीज जिसकी जरूरत जगत की उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होगी, परमेश्वर ने उस चीज को पहले से ही रखा है। एंड दैट यू एंड आई, हो सकता है आप और मैं उस चीजों को देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। दैट इज कमिंग, दैट फिश माय फ्रेंड्स, वो मछलियां मेरे प्रियो, लूका 5 में, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड इटर्नल। कई जगह पे उसे हेवन बोलते, कई जगह उसे इटर्नल बोलते, कई जगह उसे किंगडम ऑफ गॉड बोलते। व्हाट इट इज कमिंग फ्रॉम इज अ realm ऑफ स्पिरिट, इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल realm। वो एक ऐसे स्तोत्र से, एक ऐसी जगह से आ रहा है जो आत्मिक है, जो आपके मेरे नजरों से दिखता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। जब आप, जैसे मैंने पिछले हफ्ते जब मैंने वो गवाही बताई थी, एक जगह पे देखते हैं यीशु मसीह के सामने कई टुंडों को, लंगड़ों को, लूलों को लाया जाता है। कई कई बार ऐसे लोगों को लाया जाता है जिनके शरीर के कुछ भाग मेम्ड, मेम मीन्स उन लोगों के शरीर के कुछ भाग नहीं है मेरे प्रियो। किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है। उन सब को लाके यीशु मसीह के पास रखा जाता था, पर वो उसे ठीक करते थे। जिसके पास हाथ नहीं है उसे हाथ देते थे, जिसके पास पैर नहीं उसे पैर देते थे, जिसके पास आंखें नहीं उसे आंखें देते थे। व्हाट इज हैपनिंग, जैसे 2 हफ्ते पहले भी मैं गवाही दे के आपको बता रहा था, जब हमने RW श्यामबाग ने, आपने उस बच्चे में हमने एक डिमांड को देखा कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसे ये चीजें चाहिए। जैसे जिन लोगों ने यीशु मसीह के पास चीजों को लाया, लोगों को लाया, उन्होंने देखा कि इसमें ये चीजों की कमी है, ये डिमांड्स हैं, ये चीजों की हमें जरूरत है। यीशु मसीह ने उस सप्लाई को देखा, उसने उस स्तोत्र को देखा। एएलएन के पास जब उस बच्चे को लेके आए थे, एएलएन ने डिमांड से ज्यादा उस सप्लाई को देखा। वो सप्लाई जो इटर्नल में है, वो सप्लाई जो अनंत काल में है, दैट विच इज इन द इटर्निटी। He saw that supply, and when you and I can see the supply, we can bring that supply down. जब आप और मैं उस सप्लाई को, जब आप और मैं उस चीजों को जो परमेश्वर ने पहले से ही करके हमारे लिए रखा है, उन चीजों को अगर हम देख सकेंगे तो हम उसे यहाँ पे लेके भी आ सकेंगे। एक बात है, यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन मुझे मिलेगा तो मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, अगर किसी को मिलता है तो वो पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिया है। आई कम टू दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं कि देख, मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाला है। एक और जगह पे जाएंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 51, 51 एंड वर्स 16।
हिंदी में शायद 15 से पढ़ना पड़ेगा। जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिस शहरों में गर्जन होती है, वो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। इस जो आगे वाला वचन है, मैं चाहता हूँ आप उस पर ध्यान दे। और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं, और सिय्योन से कहूं कि तू मेरी प्रजा है। इन इंग्लिश इट सेज दैट आई हैव पुट माय वर्ड इन योर माउथ, सो दैट आई मे प्लांट द हेवेंस। आज के दिन अगर आप और मैं मिरेकल्स, अगर आप और मैं सुपर नेचुरल, जैसे मैंने कहा मरकुस 5 में, अगर आप और मैं उस पीड़ित दुनिया के सामने जाकर उन्हें आजाद करना चाहते हैं, परमेश्वर आज हमें एक कार्य देता है। ही इज गोना पुट हिज वर्ड in our mouth, so that we can plant the heavens, in the heaven, in the eternal, in the kingdom of God version. Those things are already done. वो पहले से ही पूर्ण हो चुके हैं। बट वॉट ही नीड्स यू टू डू, वो जो चाहता है कि आप और मैं करें, दैट इज to take heaven and plant it on the earth, to take what is in the eternal, वो जो सब परमेश्वर की दृष्टि में ऑलरेडी हो चुका है, उसे ले और उसे इस पृथ्वी पर हम, जैसे हम एक बीज को बोते हैं, उसे बोए। मैं क्या कहना चाहता हूँ let's get to this point. What am I trying to say? Most of the time, whatever you are going to bring in your life, आप और मैं अपने जीवन में जो कुछ भी बाहर लेके आएंगे, it is gonna come not based on circumstances, वो परिस्थितियों से और लोगों से और किसी भी बातों से नहीं, वो हमारे अंदर से आता है। वो हमारे अंदर, जैसे मत्ती उसका 12 उसके 35 में लिखा है, अ गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर्स ऑफ हिज हार्ट brings forth good fruit. An evil man out of the evil treasures of his heart brings forth an evil fruit. What is it saying? Your future, what fruits मैं और आप अपने जीवन में क्या फल लाते हैं, वो हमारे परिस्थितियों से, वो हमारी चीजों से और हमारे बातों से, किसी और से नहीं, वो हमारे अंदर से आता है। दैट कम्स फ्रॉम द इटर्नल दैट इज ऑन द इनसाइड ऑफ अस। इसीलिए लूका में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य तो तुम्हारे अंदर है। इसीलिए लिखा है दैट इटर्नल, दैट अनॉइंटिंग इज इन यू। वो जो अभिषेक है आपके और मेरे अंदर है। एंड नाउ व्हाट गॉड वांट्स इज, he wants us to bring those things out. And the primary way, जो मुख्य तरीका है जिससे हम उन चीजों को बाहर लेके आते हैं, that is through our words. हम अपने वचन के द्वारा उन चीजों को बाहर लेके आते। अगर आप मत्ती 12 उसके 35 के बाद का वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह यही कहते हैं, हर वो व्यर्थ की बात जो मनुष्य कहता है, अंत के दिन में उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। वो तो एक बात बोल रहे थे कि एक अच्छा आदमी अपने अंदर से अच्छा फल लाता है, और एक बुरा आदमी अपने अंदर से बुरा फल लाता है। देन सडनली वो अभी भी उसी सब्जेक्ट पे हैं, बट नाउ ही सेज दैट whatever idle words, whatever words that have no life, no meaning in them, if you are speaking, you have to be accountable for it. What am I trying to say? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? In this time that God is training us, in this time that God wants us to demonstrate miracles, I told you, if we have to demonstrate miracles, the first things we have to bring in line is what our spirit thinks and what our mouth says. हमारी आत्मा में परमेश्वर क्या डालता है और हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में एक मिलाप होना चाहिए। कई साल तक, and still now I'm still learning, one of the प्राइमरी रीजंस, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम था, वो था मेरी आत्मा में परमेश्वर के बातों से मुझे समझ में आता था, पर जो बातें मैं बोलता था, जो मेरे मुंह से निकलती थी, दे वर नॉट इन लाइन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सरल सा उदाहरण, नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल वन, एक सरल सा उदाहरण। अगर मैं किसी से बोलता हूँ कि मैं आपसे 6:30 बजे कल मिलूंगा, एंड आई डू नॉट मेक एनी एफर्ट, मैं अगर कोई एफर्ट ही नहीं करता कि मैं उस जगह पे 6:30 बजे जाऊं और उस इंसान से मिलूं, मुझे नहीं पता कि मैं उस दूसरे इंसान का क्या नुकसान करूंगा। बट द प्राइमरी प्रॉब्लम,
harm that I'm doing, वो जो सबसे ज्यादा नुकसान मैं कर रहा हूँ वो मैं अपना करूंगा. Now my spirit is out of line with my mouth. मेरा आत्मिक मनुष्य ये जानता है कि मैं जो बोलता हूँ I don't mean it, and when I don't mean what I say, you will not produce the effects that Jesus produced. यीशु मसीह अगर एक फिग ट्री को कर्स करते थे वो 24 घंटे में मुरझा जाता था. अगर यीशु मसीह पतरस की मदर इन लॉ के सामने फीवर को डांटते थे तो वो फीवर चला जाता था. एंड नाउ यू एंड आई, हम और आप, यूहन्ना 14 उसके 12 में लिखा है, जो काम मैं करता हूँ उससे बढ़कर काम तुम्हें करने हैं, पर हम नहीं कर पाते. व्हाई? बिकॉज आवर माउथ एंड आवर स्पिरिट आर नॉट इन लाइन. वी आर नॉट सेइंग व्हाट द स्पिरिट वांट्स अस टू से. वी आर नॉट इन लाइन विथ व्हाट आवर स्पिरिट, बिकॉज हमारी जो हमारा इनर मैन है, he does not believe, we do not believe, कि हम ये विश्वास ही नहीं करते कि जो हम बोलेंगे it will come to pass. And if you do not believe that what you speak is going to come to pass, how suddenly अगर आपको और मुझे पुलपिट पे खड़ा करा दिया जाए या किसी के सामने प्रार्थना करने के लिए खड़ा करा दिया जाए और तब अगर मैं और आप बोलेंगे, how is it going to be possible that it is going to be listening? That is what I'm trying to say. याकूब की किताब, the book of James chapter 3 where we started, it says that if any man can tame the tongue, if any man does not err in speech, अगर वो बोलने में चूकता नहीं है, he is a perfect man. What does perfect means? क्या वो कोई गलती नहीं करता? No. What that perfect means is, जैसे मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए मुझे 4 साल पढ़ाई करनी पड़ी, मैंने 40 से ज्यादा परीक्षाएं लिखी, शायद बहुत से और भी अधिक कार्य किए, तब उन्होंने कहा कि मैं एक इंजीनियर हूँ. उसके बाद मैं बाहर गया दुनिया में, क्या मैं हर काम सही करता हूँ? कई बार मैं गलत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री वो वापस ले लेते हैं. इट इज स्टिल गोना बी देयर, क्योंकि जो कुछ उन्हें सिखाना था, जो कुछ उन्हें बताना था, वो उन्होंने बताया, और मुझे पता है मैं कहाँ चूक रहा हूँ. सो देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर मी टू कम बैक. अगर जेम्स की किताब उसके 3 को अब आगे पढ़ेंगे, व्हाट इट सेज इज, जो जीभ है वो कैसी है, वो कहते हैं कि एक घोड़े की जो लगाम होती है, और अ बिग शिप विथ हेल्म. मुझे नहीं पता कितने लोगों को हेल्म या पतवार का पता है, लेकिन आज के डेट में अगर आपको समझना है, इसका चित्रण करना है, थिंक अबाउट इट एज अ स्टीयरिंग व्हील. थिंक अबाउट इट एज अ स्टीयरिंग व्हील. अगर हम एक सामने की दिशा में जा रहे हैं और हमें वापस पीछे की ओर जाना है, तो हम क्या करते हैं? हम उस स्टीयरिंग व्हील को पूरा घुमाते हैं मेरे प्रियो, और तब तक उसे घुमा के रखते हैं जब तक कि हम पूरी तरीके से पीछे नहीं हो जाते. अगर उस बीच में हमें ऐसा लगा कि अरे गाड़ी नहीं घूम रही है, हमने वो स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया, वी गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम. एक बहुत बड़ा सा जहाज है, जैसे टाइटैनिक है, उससे भी बड़ा जहाज, उसको मोड़ने के लिए वैसे ही एक पतवार या हेल्म होता, बहुत छोटा सा स्टीयरिंग व्हील होता है जिसे उस शिप का कैप्टन घुमाता है. और जब वो घुमाता है वो शिप कहीं नहीं मुड़ता, वो सीधा ही जाते रहता है. पर जो उस व्हील को घुमाता है वो जानता है कि जैसे ही उसने उस चक्के उस व्हील को घुमाया है, एक ऐसा अदृश्य भाग है उसका जिसे प्रोपेलर कहते हैं, पंखे की तरह रहता है, जो पानी के अंदर है, जो किसी को दिखता नहीं. वो पानी को विपरीत दिशा में काटने लगता है, और जब वो पानी को विपरीत दिशा में काटने लगता है तो क्या होता है? एक समय की बात है मेरे प्रियो, उस जहाज का मुड़ना तय है. लेकिन अगर उस कैप्टन को लगा कि अरे स्टीयरिंग व्हील काम नहीं कर रहा है और मैं उसे वापस छोड़ देता हूँ, अगर उसने उस व्हील को छोड़ दिया तो वो जहाज फिर से सीधा जाने लगता है. लेकिन अगर उसने उसे पकड़ के रखा, उसे मोड़ा और उस जगह पे पकड़ के रखा, चाहे घंटा 2 घंटा, कई कई बार 7 8 4 घंटे लग जाते बड़ी बड़ी जहाजों को मुड़ने में, पूरी 360 डिग्री, लेकिन वो मुड़ जाते हैं मेरे प्रियो. व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ? द डेस्टिनी, द पर्पस एंड द प्लान्स दैट गॉड हैज फॉर योर लाइफ, नोबडी एल्स, कोई और आपसे उस डेस्टिनी को, उस नियति को, उन बातों को हमसे आपसे छीन नहीं सकता. लेकिन जो हम विश्वास करते और जो हम बोलते हैं, उसके कारण से ऐसा होता है कि जो हमारे जीवन में है. और कई कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात को सोचा है, या हम यूं ही इस बात को बोलते हैं
टुडे बाय रेवलेशन आई टेल यू, देयर इज नो ओरिजिनल थॉट। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पहले से आपने और मैंने सोची है वो ओरिजिनल है। वो या तो हम परमेश्वर के राज्य से उठाते हैं या फिर हम शैतान के राज्य से उठाते हैं। मेरे पास समय नहीं है। अय्यूब की किताब द बुक ऑफ जोब, इफ यू रीड चैप्टर 1, पहला अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर शैतान से बोलते हैं तुमने अय्यूब को देखा, वो कितना अच्छा इंसान है, वो मेरा डर मानता है और सब कुछ है। अय्यूब उससे बोलता है कि तूने उसके सामने बाड़ा नहीं बनाया है क्या? उस बाड़े को तू हटा दे। देख वो तुझे मुंह पे, ही विल कर्स यू ऑन योर माउथ एंड देन ही विल लीव यू। अगर आप एक अध्याय पीछे जाएंगे, वैसा ही कुछ उसके साथ होता है। अय्यूब के जीवन में मुश्किलें चालू होती हैं तो उसकी पत्नी उसके पास आती है और बोलती है कि तू क्यों नहीं परमेश्वर को, व्हाई डोंट यू कर्स गॉड एंड डाई, व्हाट एम आई सेइंग। शी डिडंट थिंक दोस वर्ड्स, उसने उस बातों को सोचा नहीं। उसने शैतान की उस आवाज को सुना और उसे बोला, व्हाट यू एंड आई आर स्पीकिंग, आप और मैं क्या बोलते हैं, इट इज आइदर कमिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, या तो वो परमेश्वर के राज्य से आ रहा है या तो वो शैतान के राज्य से आ रहा है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और हम जो बोलते हैं, इसीलिए परमेश्वर इन सारी बातों को, इन सारे चीजों को सबको नहीं समझाता। बट व्हेन ही नोज दैट पीपल आर मेच्योर इनफ, जब उसे पता है कि लोग तैयार हैं, तब वो उन्हें इन स्थानों पे लेके जाता है। व्हाट हैपेंस नाउ, इट्स अ डबल एजेड sword when you know this thing, जब आपको ये चीज पता है, now you will be held accountable for what is coming out of your mouth. What is coming out of your mouth will, if you believe it, it has to produce the results, and that is why God has placed you. If you want to bring the eternal, if you want to bring the miraculous into people's life, if you want to set the captives free, the primary way you're gonna do is by speaking words, and your words have to produce life. जब आप बोलते हैं, when I speak something, I have to believe that what I said is going to come to pass. And it's a practice. It is a state where you and I have to start somewhere, my friends. And when you and I will start somewhere, God will start giving you thoughts. God will start giving you visions. God will start giving you purposes that are so big in your heart that you can't do it. But then He will give you a way to bring it forth by saying it and by sticking to it. एक आखिरी गवाही है जिसे मेरे जीवन में बहुत का मुझे उत्साहित किया, मैं उसे आपको बता के खत्म करना चाहता हूँ। देर इज अ मैन ऑफ गॉड नेम्ड ईवी हिल्स। वो परमेश्वर के पास चले गए, बहुत पहले की बात है, कई साल पहले मैंने इसे सुना है। जैसे मैंने पिछली गवाही भी जो बताई थी वो मैंने कई साल पहले सुना था मेरे प्रियो। तो वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहता, पर मैं उस सार को बताऊंगा जो आपको समझना है। उन्होंने एक बार ऑरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटीज में ये गवाही को दिया। वो गवाही क्या है? टू प्लांटिंग द हेवेंस। ही डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने उस गवाही में बताया कैसे हम स्वर्ग को लेकर पृथ्वी पर न बोते हैं। उन्होंने बताया हाउ यू स्टार्ट इन फेथ, यू स्टे इन फेथ एंड यू फिनिश इन फेथ। देन ही टोल्ड हाउ डू यू डिक्लेयर और सी द एंड राइट एट द बिगिनिंग। वो गवाही है, उन्होंने बताया। वो उनकी भी नहीं, उनके माँ की गवाही है। वो ईवी हिल्स के माँ की गवाही। उसने कहा, ये उस समय की बात है अमेरिका में जब अभी अभी दासत्व खत्म हुआ था और ये अफ्रीकन अमेरिकन लीनिएज के थे। मुझे ठीक से याद नहीं, इनके पापा या तो नहीं इनके साथ रहते थे या तो फिर वो नहीं थे, परमेश्वर के पास चले गए थे। उनकी माँ थी जो सारे बच्चों की देख रेख करती थी, उसमें से ईवी हिल सबसे बड़े थे। उनके और भी भाई बहनें थे। एब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा गरीब लोग थे ये। इनके पास खाने से लेके हर बातों में तकलीफ थी। लेकिन उनकी माँ एक विश्वासी थी। तो क्या होता है, एक बार धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हम जब छोटे थे उसके बाद एक दिन मेरी माँ को पता नहीं क्या हो, मतलब मेरी माँ से क्या, वो मुझसे कहने लगी और सबसे कहने लगी कि मेरा बेटा स्कूल जाएगा। आज की डेट में जब हम सोचते हैं तो हमें यह साधारण बात लगती है, लेकिन उस समय पे उस रंग के लोग, उस स्टेचर के लोग ये स्कूल वगैरह नहीं जाते थे। ये या तो किसी जगह पे काम करते थे या फिर ये गरीबी में कुछ ना कुछ काम करते और ये व्यर्थ घूमते थे, लेकिन ये स्कूल वगैरह। तो उनसे कहा कि मेरा बेटा स्कूल जाएगा। तो चर्च के जो एल्डर्स और डीकन्स ये सारे थे वो उसके पास आए। जैसे
से मैंने कहा कुलूसियो 2:8, उनकी बुद्धि संसार की बुद्धि है मेरे प्रियो। उन्होंने कहा कि सिस्टर ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा लीजिए, लेकिन ये बड़ा बेटा है, आपके हाथ आएगा। अगर आप दोनों ने कुछ किया तो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी आर्थिक स्थिति बदलेगी और आप लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसकी माँ ने उन बातों को ज्यादा सुना नहीं। फिर वो गए, उन्होंने 8वीं कक्षा पास की, फिर उन्होंने 10वीं कक्षा पास की। उसके बाद चर्च के लोग और सारे लोग बोलने लगे अब तो बड़ा हो गया है, अब तो उसे स्कूल से निकालो। तो उनकी माँ ने कहा, वो और निडर हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा अब कॉलेज जाएगा। उसने कहा, जैसे ही मेरी माँ ने ये कहना आरंभ किया, अंडरस्टैंड, नॉट वन डाइम, उनके पास 1 रुपए, $1 भी नहीं है। उन्होंने कहा, सब कुछ उलट पुलट होने लगा। लोग आके हमारे पे चिल्लाने लगे, हमारे नेबर से लेके हमारे चर्च वालों से लेके हर कोई, आप क्या पागल हो गए हैं? आपके पास स्कूल का फीस कहाँ से आएगा? आप बच्चे को भी भेज दे रहे हैं, आप लोग की वैसी ही हालत खराब है और हालत खराब हो जाएगी। हर प्रकार से, नाना प्रकार से, जिस प्रकार से भी डिस्करेज किया जा सकता था उन्होंने किया। लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। उसने कहा कि ये नहीं, मेरा बेटा कॉलेज जाएगा। क्या हुआ, एक आखिरी वो दिन आया मेरे प्रियो, जिस दिन उसे कॉलेज जाना था। उसने कहा, मेरे पास ज्यादा कपड़े उपड़े तो थे नहीं, 1-2 कपड़े थे। उसे हमने एक कार्डबोर्ड यानी पुट्ठे की, उस समय पे पुराने जमाने में पुट्ठे की एक सूटकेस थी, उसमें डाला। हमारे पुट्ठे के सूटकेस में तो लॉक भी नहीं था, तो ट्वाइन मांझा जो पतंग को बांधते हैं या पतंग उड़ाने के लिए यूज करते हैं, वैसी डोर, उसको दोनों तरफ से हमने उस सूटकेस में बांधा। मेरी माँ ने मुझे खाने के लिए एक चिकन या कुछ थोड़ा सा दिया। मेरे पास बस स्टॉप में आई और उसने मेरे हाथ में $16 दिया। और उसने एक बात कही, मैं उसे ट्रांसलेट नहीं करूंगा, उसे वैसे ही बताऊंगा जैसे उन्होंने बताया। उसने कहा, डू वेल माई सन, आई बी प्रेइंग फॉर यू। उसने कहा कि ये $16 में तो वहां पे एक महीना भी रहना मुश्किल है। लेकिन उसकी एक बात थी जो उसने कही, आई बी प्रेइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। उसने कहा, मैं जानता हूँ मेरी माँ जब प्रार्थना करती है क्या होता है, मैंने अपने लाइफ में देखा है। उसने कहा, और इसीलिए मैं उस बस को चढ़ गया। वो क्या कह रहे थे, उसने कहा, कई कई बार हमारे पास जब हम छोटे थे ऐसा होता है, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होता था। हमारे घर में उस रात को खाने के लिए खाना नहीं होता, तो या तो हमारे घर में कोई पड़ोसी आता, या तो फिर हम अगर पड़ोस में विजिट करने जाते तो लोग हमसे बोलते, सिस्टर हिल्स आज अच्छा खाना बनाया है। उनको पता है हमारे पास नहीं है, तो वो हमसे बोलते, सिस्टर हिल हमने बहुत अच्छा खाना बनाया है और ज्यादा बनाया, आप लेके जाइए या खा के जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए, अच्छा रहेगा। पर मेरी माँ हमेशा कहती, ओ थैंक यू, पर नहीं, हमारा खाना तो घर पे रखा है। मैं सोचता, अरे माँ क्यों झूठ बोलती है, अरे माँ तू क्यों ऐसा करती है, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों नहीं तू कुछ ले लेती। पर मेरी माँ लेती नहीं थी। उसने कहा, फिर वो घर आती, जैसे हर दिन जैसे खाने रहने पे डाइनिंग टेबल सजाती, उसने कहा मेरी माँ वैसे ही डाइनिंग टेबल को सजाती थी। उसके बाद हम सब भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और मेरी माँ भी हाथ पकड़ती थी। और उसने कहा, फिर वो प्रार्थना करती। उसने कहा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, उसने कहा कई कई बार मैंने देखा है। जब वो प्रार्थना करती थी तो कोई दरवाजे को खटखटाता था, फिर वो बोलती, जाओ दरवाजा खोलो। तो उसने कहा, कई बार मैंने देखा कि आलूओं की एक बोरी रखी हुई है, या कई कई बार मैंने देखा एक पूरा चिकन रखा हुआ है, या कई बार मैंने देखा किसी ने पूरा खाना दिया हुआ है। तो उसने क्या कहा, मैं जानता था अगर मेरी माँ प्रार्थना करेगी तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। इसीलिए मैं गया, मैं उस कॉलेज में चला गया। फिर उसने कहा, कुछ महीने, 1 महीना कुछ हुआ मुझे याद नहीं, बोला मेरा $16 $3 में आ गया। अब वो समय आया जब मुझे फीस भरना था ऑफिस में जाके, सारे बच्चे खड़े थे, मैं भी उस लाइन में जाके खड़ा हो गया। उस समय पे क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंक, ये सब नहीं, कैश में पैसा देना था। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ समय के अभाव से। तो वो लाइन में खड़े हुए, तो उन्होंने कहा, जैसे ही मैं लाइन में खड़ा हुआ मेरे कान में एक आवाज आई, अरे तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास आगे भी कोई होप नहीं है कि तुम्हारी मम्मी मनी ऑर्डर या फिर कहीं से भी तुमको पैसे ला के देगी। तुम इस लाइन में खड़े हो कि साबित क्या करना चाहते हो? चुपचाप जाओ अपने रूम में, अपना सामान पैक करो, अपने गांव जाओ और जो कुछ कर सकते हो करो, और तुम और तुम्हारी माँ जैसे तैसे रह लोगे, कम से कम रहोगे तो, यहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा, उस आवाज में सब कुछ
तथ्य था, देयर वर ऑल फैक्ट्स, इट वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट वॉइस। और मुझे लगता भी था कि मैं वही करूं। फिर उसने कहा, मेरे दूसरी कान में एक आवाज आए, आई बी प्रेइंग फॉर यू। मेरी माँ की आवाज थी कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। उसने कहा, मैं एक और कदम बढ़ाया, आवाज और तेज हुई। उसने कहा, तुमको समझ में भी आता है कि कितनी तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे को लोग क्या क्या कहेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इन सब के सामने तुम अपना इंसल्ट करा रहे हो। ईवी हिल्स कहे कि अगर मेरी माँ की वो आवाज की बात नहीं होती तो मैं उस लाइन को छोड़ के कब का चला जाता, क्योंकि वो जो आवाज, जो प्रेशर था, वो बढ़ता ही जा रहा था। हर वो कदम जो मैं बढ़ा रहा था, उसके साथ वो आवाज इतनी तेज और इतनी वो हो रही थी, मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जोर से डांटा जाएगा, मुझे यहाँ बेइज्जत करके निकाला जाएगा। पर वो जो दूसरी कान में मुझे आवाज आती थी कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, दैट केप्ट मी गोइंग, दैट केप्ट मी गोइंग। देन व्हाट हैपेंड, उसने कहा कि अब एक और बच्चा था, उसके बाद मेरा नंबर था। कुछ भी नहीं बदल रहा था। मैं खड़ा था वहां पे, मैं सोच रहा कि मैं क्या बोलूंगा। इतने में एक लड़की आई, बोली कि मुझे जल्दी है, आपको कोई जल्दी है क्या? तो उसने कहा, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप एक काम करो, आप ही खड़े हो जाओ। तो फिर वो लड़की खड़ी हो गई, और जब उस लड़की का काउंटर पे जाने का समय आया, तो किसी ने, कोई हॉल में आया, उसने जोर जोर से चिल्लाया, ईवी हिल करके। तो इसके कान में आवाज आई, मैंने तुझसे कहा था ना कि आज तेरी भारी बेइज्जती होगी। मैंने तुझसे कहा था ना कि चुपचाप तू यहाँ से निकल ले, तेरा काम हो जाएगा। अब देख, सबके सामने, सारे यूनिवर्सिटी के सामने तेरे और तेरे परिवार की बेइज्जती होगी, और तुझे निकाला जाएगा, और तुझ पर हंसा जाएगा। उसने कहा कि अब ऐसे ही लगता है। फिर उसने अपना हाथ उठाया कि हाँ, मैं ही ईवी हिल हूँ। दानियल नबी की किताब, उसके तीसरे अध्याय में शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने क्या कहा, हे राजा, हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि हम तुझे इस चीज का जवाब दें, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। लेकिन अगर कुछ बदला तो भी ये जान ले, हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं। उस राजा ने क्या किया, वो गुस्सा हुआ, उसने तापमान को 7 गुना बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, जब हम वचन पर, जब परमेश्वर के दिए विजन पर, जब परमेश्वर के दिए वर्ड पर, जो परमेश्वर के दिए कार्य पर हम कड़े रहते हैं, शैतान उस तापमान को, उस प्रेशर को बढ़ाता है, जैसे वो ईवी हिल के जीवन में बढ़ा रहा था। अब वो आदमी आया, उसके सामने खड़ा हुआ, उससे कहा, तुम्हारा नाम ईवी हिल है? उसने कहा, यस सर। उसने कहा, तुम लाइन से बाहर निकलो। उसने कहा, पर सर मेरी माँ। उसने कहा, तुम्हारा नाम ईवी हिल है? वो और जोर से बोलने लगा। उसने कहा, तुम्हारा नाम ईवी हिल है? उसने कहा, हाँ। उसने बोला, तुम लाइन से बाहर निकलो। इसने कहा, पर सर मेरी माँ। उसने कहा, तुम्हारा नाम ईवी हिल है? उसने कहा, हाँ सर, पर मेरी माँ। उसने कहा, तुम्हारा नाम ईवी हिल है? उसने कहा, हाँ। तुम बोला, तुम सबसे पहले बाहर निकलो लाइन के। उसने कहा, बोला कि मैं डरते डरते, मैं चुपचाप अब और तमाशा ना करूं करके मैं लाइन से बाहर निकला। मेरे प्रियो, उन तीनों इजरायलियों को जब उस आग में डाला गया बांध कर, थोड़े देर में राजा ने झुक के देखा। उसने कहा कि क्या हमने तीन को बांध के नहीं डाला था? पर ये तो 4 लोग खुले घूम रहे हैं, और वो चौथा, उसका स्वरूप तो मनुष्य के पुत्र के समान है, द सन ऑफ गॉड। ही प्रॉमिस्ड ही विल नेवर लीव अस नॉट forsake us। उस चौथे ने हमसे वायदा किया है, वो हमसे, हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। क्या होता है, उसे वापस बुलाते हैं, वो उसे बोलने चाहता है, सर मेरी माँ। उसे बोले, तुम पहले चुप रहो। वो बोले, तुम पहले चुप रहो और हमारी बात सुनो। वो एक फाइल को खोलते हैं, बोलते हैं कि हमें नहीं पता, मैं तो तुम्हारे लिए सुबह से खोज रहा हूँ यार, तुम मेरा इतना समय व्यर्थ किए। तुम्हारे 4 साल का फीस, तुम्हारे हॉस्टल का फीस, तुम्हारे रहने का फीस, तुम्हारे खाने का फीस, तुम्हारे बुक्स का, उन सारे चीजों का पेमेंट किसी ने आज सुबह किया है, और ये सारा चीज पेड है। नाउ यू कैन स्टे इन दैट कॉलेज एंड यू कैन स्टडी। मैं तो ये बताने आया था कि इस लाइन में खड़े होके अपना समय व्यर्थ करने की तुमको जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नो मैटर व्हाट दैट प्रेशर इज, दैट ड्रीम दैट गॉड हैज गिवन यू, दैट विजन दैट गॉड हैज गिवन यू। आपको, कई लोग हैं, मेरे ख्याल से इस मीटिंग में कोई तो है, मुझे नहीं पता, परमेश्वर ने आपके अंदर में कुछ डाला है। देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ विजन, देयर इज अ ड्रीम, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज।
कई साल बीत गए, you wanted that thing to go away but it doesn't go away. वो जाता नहीं, वो आपके अंदर में ही है. What he's trying to get to you is the fourth one, the Son of God. He will never leave you nor forsake you. What he wants you to do is plant the heavens. उसने हमको और आपको चुना है क्योंकि उसे पता है कि हम तैयार हैं. He wants to plant the heavens in other people. It's not about my life. ये मेरे जीवन के बारे में नहीं है. It is not about your life. ये आपके जीवन के बारे में नहीं है. It is about establishing and setting the captives free. It is about establishing the kingdom of God and setting the captives free. And He wants to do that. He wants to plant the heavens through you. And for that to do, He wants you to use your words. He wants to use your words to plant the heavens. He wants use your words to bring out what is on the inside of you to the outside. If pressures come, all these things are coming in our life. वो हमारे जीवनों में आते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपका कुछ कर सकते हैं. They want to change your confession. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, आओ उस पार चलें. जब बड़ी आंधी आई, उसके चेलों ने कहा, तू देखता नहीं, ये हमें मार देगा. The pressures in your life are there to change the words by which you're going to plant the heavens, my friends. मैं आज आपको क्या बताने आया था? You have to believe for a miracle. You have to expect the miracle, and you need to know that the miracle you're believing for, God has already done it from the foundations of the world. And now it's your time. ये मेरा समय और आपका समय है to plant that miracle on this earth. And for that, you have to stand fast on the word. You have to stand fast on the confession, no matter what, how much pressure the enemy is going to bring, because you are chosen. उसने आपको और मुझे चुना है to plant the heavens. And I've come all the way to tell, like Evie Hill's mom, no matter what happens, the fourth one will never leave you. Jesus Christ will never leave you nor forsake you. You will bring forth, you will fulfill your destiny, and you will do. आप वो कार्य करेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आपको ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा. परंतु जो वचन आपको उसने दिया है, जो ड्रीम, जो स्वप्न आपको उसने दिया है, जो विजन उसने आपको दिया है, डोंट स्पीक contrary to that because of the pressures of this world, and you will bring forth the miracle that you are believing for. Thank you. That's all I wanted to say. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus.